And welcome back after the break. आप देख रहे हैं पहचान and we are still in conversation with Mr. Salim Manviwala, who is the chairman of the Board of Investment. यहाँ हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना आज के वक्त में, आज के हालात में थोड़ा मुश्किल सही, लेकिन बहरहाल इसके लिए काम किया जा रहा है और अब बहुत सारी मस्बत तब्दीलियाँ हमारे सामने. A little more about the man himself. सलीम साहब, आपने बताया कि बचपन में you were always inclined to become a pilot. Planes used to fascinate me. So I always wanted to fly. तो वो एक मेरा शौक था, which I did, and I took my education in that, and then I did my flying, and then I was actually working as a commercial pilot in the US. फिर कहते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर किसी को ड्राइविंग आती हो और आपके साथ कोई और ड्राइव कर रहा है जो अभी सीख रहा है, तो आप उसको करेक्ट करते हैं. Is that true for pilots as well when you're on a plane? Can you tell people कि यार आप सही fly नहीं कर रहे? Actually, it's always a learning process. Always a learning process. I think in anything you work or I think live in or whatever, you are always learning. I mean, it's so you're always learning from your own mistakes and you're learning from others' mistakes. आपको लगता है कि प्रोफेशनल्स कैन बी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स एज वेल? क्योंकि अभी जैसे हम बात कर रहे थे PIA की, द लास्ट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ PIA वाज आल्सो कैप्टन ऑफ द प्लेन, लाइक ही वाज आल्सो अ पायलट. तो लोगों का ख्याल होता है कि शायद जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका जो एक बड़ा स्पेशलाइज्ड काम है, उनको जब एडमिन पोजीशंस पे रख दिया जाए, दैट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. व्हाट्स योर ओपिनियन? Generally it is, yes, but the exceptions are there. People excel at times, but they are very few. But yeah, generally this is true because they are actually focused on what they do, and an administration person is not focused. He has a macro view. So I think generally ये नहीं करना चाहिए. Since you said कि बचपन से ही आपको फ्लाइंग का शौक था, तो रोल मॉडल कौन था? Were you fascinated by Rashid Minhas या? No, I was fascinated by planes. अच्छा. I mean how they flew and why they flew, and what was the reason and all that. So it used to fascinate me as a child, and I used to have these models of planes, and I used to make these models of planes. Then I used to do model flying, remote control flying and all that. So I was always fascinated, and it was something that I wanted to do. और आपका बचपन कराची में ही गुजरा? जी, I am a Karachiite very much, and I grew up in Karachi. Okay, and what was the Karachi of that day and age? यानी It was a very different Karachi, very different Karachi, and we miss that Karachi today, no doubt. I mean, I could be going on cycle all over Karachi and going to friends' houses and friends coming to my house, but that you can't do anymore. It's a bygone era. I see my children, we can't allow them to go on cycles anymore. So it's a sad अच्छा, उस ज़माने की थ्रिल्स क्या होती थे? जैसे आज अगर बच्चों से बात की जाए तो दे वांट टू हैव कॉफ़ी विद देयर फ्रेंड्स एट ग्लोरिया, या उनको मैकडॉनल्ड्स जाना है, KFC जाना है. सो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हाट यूज्ड टू बी दैट थिंग? उस ज़माने में थ्रिल ये होती थी कि we had to see at 6 o'clock Get Smart on TV. It was a different thing. And then I mean, now there is so much for children to do. There were no computers, there was no cell phones, there was nothing like that. So it was like going to a farm or going to waiting for weekend to go. And there was इतना outing का concept नहीं था जो आज है. Every child tells you that I am bored, or I want to do something, or I want to go somewhere. So it's different times. How many siblings did you have? I have 3 brothers. You have 3 brothers. अच्छा, और growing up आपको अपने father से ज़्यादा डर लगता था, or were you close to him? Well, I mean, in business families, normally the fathers are always busy, so you don't see them much. So you're always kind of close to your mother. But obviously, I mean, we were always scared of the father. अच्छा, because it was an all boys household, तो क्या sibling rivalry ज़्यादा थी? Were you competitive? Or not really. I mean, we were all very close to each other, and I mean, it's everybody had a different nature. So कोई ऐसी बात नहीं थी. We were all very close. और ग्रेड्स के मामले में आप लोगों में होता है ना, जैसे भाइयों में हो कि ये ज़्यादा पढ़ाकू है, इसके तो हमेशा ग्रेड्स अच्छे आते हैं, या अम्मी अब्बू से डांट पड़ती हो कि सर्टन परफॉर्मेंस लेवल मेंटेन करना? That's true. I mean, the other brothers were much more into studying than me. I was not very
focused on studies. So they were more into studies, and they were more, I should say, more interested in it. And growing up, were you into sports? जी, I was. ठीक है. I was very much into sports. We were in the hockey team, we were in the swimming team, Sindh swimming team, and we were quite active in both of these. I was in Habib School in Karachi, so both these teams were important teams of the school. It's very interesting you mentioned that, क्योंकि इसी प्रोग्राम में बहुत सारे बिजनेस लीडर्स से हमारी मुलाकात होती है, and a lot of them recognize Habib as their alma mater. In those days, it was one of the good schools. आपको क्या लगता है आज when your own kids are growing up, तो अब बच्चे उस तरह आउटडोर एक्टिविटीज़ में, गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये किसी ना किसी तरह उनकी पर्सनालिटीज़ को इफ़ेक्ट करता है? बिकॉज स्पोर्ट टीचर्स यू अ लॉट, उसमें आपको टीम वर्क आता है, आपको लीडरशिप स्किल्स प्रैक्टिस करनी आती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आज लगता है कि बच्चे इतने एक्टिव नहीं हैं? नहीं, मेरा ख्याल अगेन दे डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड. अब लाइक वन ऑफ माई सन्स, ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज़ वेरी कीन, ही कीप्स टेलिंग मी आई वांट टू प्ले क्रिकेट, आई वांट टू गो इनटू द क्रिकेट टीम. But the other one is not really interested into, he is more into computers and more into, things that don't require, not interested in sports. So I think it depends on the child himself. थोड़ी देर पहले जो हम पॉलिटिकल टर्मोइल की बात कर रहे थे सलीम साहब, when you watch TV और ये रोज़ बरोज़ जो स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स आपके सामने आ रही होती हैं, दैट मेक्स ऑफ कोर्स योर टास्क मच हार्डर कि जी एक परसेप्शन को, एक स्पेकुलेशन को ब्रेक ऑफ करना बहुत मुश्किल है. तो आपका क्या रिएक्शन होता है इन वाचिंग द 9 o'clock न्यूज़ बुलेटिन? Yes, I mean when you hear the bad news and you wonder कि ये जो चीज़ें आगे आपने प्लान की हुई हैं वो क्या होगा, और वही होता है कि जैसे कोई न्यूज़ आती है तो बाहर से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि जी what do you think, we should do this, we should come, or we should delay our trip, and we should, it's a constant nightmare for us. But how true do you feel this is कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के पोटेंशियल की, कि जो हमारे पास ज़खायर हैं, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है हालात बुरे ही सही, चैलेंजेस सही, just the potential of the land itself, do you feel it excites the investor? जी, it does excite the investor. See, what we need to realize is we have seen so many models. You saw Malaysia, you saw Thailand. 20 years ago, 30 years ago, these countries used to look towards us. आज थाईलैंड की जो एक्सपोर्ट है, it's $225 billion, and where are we? And we are celebrating on 25 billion. आप ये सोचें कि मतलब we don't even realize our potential and where we should be today, where others were used to look at us at one time, and today we are looking at them, and we have these models in front of us. We don't need to create any model, but we need to seriously implement these models. सही. और उसके लिए जो डेडिकेशन चाहिए, you feel that it is there or it is not there? It's not there. Because I personally feel that there are so many other issues for the leadership that they really don't get time to focus on investment. सही. And जब तक के serious, हालांकि in my view still this leadership is focusing a lot on investment, but you need to really make it happen. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कई लोगों का ख्याल ये है कि जी जब लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टर को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल है. लोकल इन्वेस्टर का इस वक्त क्या देखिए, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है. आई नो सो मैनी लोकल इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग एंड आई नो सो मैनी हु आर डिसइन्वेस्टिंग. तो ये तो एक बिजनेस की सिचुएशन होती है फॉर देम. ये नहीं आप कह सकते कि जी लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा और या लोकल इन्वेस्टर मुल्क छोड़ के भाग रहा है या ये हो रहा है. और माइग्रेशन एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो हु हैव कम बैक फ्रॉम कनाडा, हु हैव माइग्रेटेड बैक टू कनाडा, एंड लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉन टू कनाडा. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि जी लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसका कोई कनेक्शन नहीं है. ये ज़रूर है
कि लोकल इन्वेस्टर लॉट ऑफ टाइम्स ब्रिंग्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको तजाद नज़र आता है? हमारे यहाँ अक्सर लोग इस बारे में बात करते हैं कि एक सर्टन सेक्टर है सोसाइटी का जो हैव्स हैं और फिर हैव नॉट्स, इनका जो आपसी फ़र्क है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। जब हम कुछ लोगों की बात करें कि जी पाकिस्तान में परचेजिंग पावर है, कुछ लोगों के बहुत डिस्पोजेबल इनकम है, ऑन द अदर हैंड यू सी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, इसका हल आपके जहन में क्या है? एंड डू यू सी दैट समवन इज़ फोकस्ड ऑन दैम? देखें, इसका हल अगर आप दूसरे मुल्कों में देखेंगे क्या हुआ है, इफ़ यू अगेन आई विल टॉक ऑफ मलेशिया, आई विल टॉक ऑफ थाईलैंड, व्हाट हैज़ हैपेंड देयर। इकोनॉमिक बूम आया उन मुल्कों में, एवरीबडी बेनिफिटेड, यू कांट से। देखें वो जो डिफरेंस है, ऑब्वियसली इफ़ समबडी इज़ अ मिलियनेयर टुडे एंड बिकम्स अ बिलियनेयर टुमारो, इन द प्रोसेस ही विल मेक लॉट ऑफ people also in the process he'll also give people opportunity. He's not becoming a billionaire alone, you know. So you see a different class in Malaysia, you see a different class in Thailand, you see different a much bigger middle class than what they used to have today. तो ये तो I mean, but the economic growth is the key to all this. वो नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, यू विल बी एट अ स्टैंड स्टिल। और ये जो नए जनरेशन की अगर बात की जाए, बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट वी आर अ वेरी यंग कंट्री, पॉपुलेशन का 60% 55% जो हिस्सा है वो यूथ पे डिपेंड करता है। इस यूथ से आपको क्या उम्मीदें हैं? यानी क्या आपको लगता है कि दे विल बिकम एंटरप्रेन्योर? दे आर एन एसेट टू पाकिस्तान। जब हम मार्केट करते हैं पाकिस्तान को, तो हम यूथ को मार्केट करते हैं, एंड पीपल अप्रिशिएट एंड दे गेट सरप्राइज, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर इन नेगेटिव ऑफ पॉपुलेशन, वी आर इन पॉजिटिव पॉपुलेशन एंड वी हैव अ यंग पॉपुलेशन। दैट इज़ वाई व्हेन कंट्रीज कम एंड मेक अ सर्वे, ऑल दीज आर प्लस पॉइंट्स। बट एक जो प्रॉब्लम भी है, एक इसके साथ एक प्रॉब्लम जो डेवलप हो रही है, वो यूथ जो आपका निकल रहा है वो इस टाइप की ट्रेनिंग या एजुकेशन से नहीं निकल रहा जो कि हमारे पास होनी चाहिए। दैट इज़ वेयर वी आर लैकिंग। वी आर नॉट एबल टू गिव यूथ द राइट एजुकेशन एंड द राइट ट्रेनिंग from which they can benefit and from which the investor can benefit. एक और बात यहाँ पर सलीम साहब करनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम यूथ की बात करते हैं, we also get swayed by rhetoric, यानी कुछ ऐसे sentiments होते हैं जो शायद हो सकते हैं हमारे अपने ना हो, लेकिन इनका एक इम्पैक्ट आता है। लाइक मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं इंडिया को MFN स्टेटस दिए जाने की या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री की इन्वेस्टमेंट की, we sometimes feel this resentment जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन कहते जी इंडिया को आपने MFN मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस दे दिया, उसके लिए एक ख़ास तबका फ़िक्र है जहाँ से रिजेंटमेंट आ रही है। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? देखें यार, मैं अगर आप वही MFN की बात दोबारा होती है। MFN कोई नया, इट्स नॉट अ न्यू वर्ड, इट कम्स आउट ऑफ WTO एज यू नो, एंड दीज आर abbreviations which are used between countries when they negotiate trade or different things with each other. तो इसमें कोई ऐसी बात मेरे व्यू में कोई there's nothing to be worried about. We will do what is in the interest of Pakistan, and I don't think anybody in the government would like to do anything which is not in the interest of Pakistan. So, and similar thing the Indians will do. They will also like to do everything which is in the interest of India. So as long as both can benefit, it's fine. But it can't be a one-sided MFN. It'll have to be a win-win for both the countries. It has to be a win-win for everyone. It is really important to have that perspective in mind. बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि जी हमने literal translation कर दिया है MFN most favored nation, सबसे पसंदीदा मुल्क, और उस पर लोगों को हो जाता है एतराज़। लेकिन we need to understand कि ये World Trade Organization का एक status है कि जब आप नॉन टैरिफ बैरियर्स को या टैरिफ वाले बैरियर्स को कम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक स्टेटस दूसरी कंट्री को अवॉर्ड किया जाता है। बहरहाल इस बारे में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएगा। We are going to continue with Pehchan, a conversation with me, Sidra Iqbal.